اسکولوں میں 4 دن کام اور 3 دن کا آرام، طلبہ کے لیے بھی لانگ ویکنڈ کی بہار۔ پنجاب کے تعلیمی ادارے ہفتے میں 4 دن کھلیں گے۔ سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں جمعہ، ہفتہ اتوار چھٹی ہوگی۔ اسکولوں کے اوقات کار بھی بدل کے اسکول صبح 8 سے 1:30 بجے تک کھلیں گے۔ سیکنڈ شفٹ میں اسکول دوپہر 1 سے 5:30 بجے تک لگا کریں گے۔ نئے سال کے تعلیمی کیلنڈر کی بھی تیاری کر لی گئی۔ گرمیوں کی چھٹیاں صرف 2 ماہ کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ اسکولوں میں 4 دن کام ہوگا اور 3 دن کا آرام ہوگا۔ پنجاب کے تعلیمی ادارے ہفتے میں 4 دن کھلیں گے۔ سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں جمعہ، ہفتہ اتوار چھٹی ہوگی۔ اسکولوں کے اوقات کار صبح 8 سے 1:30 بجے تک ہوں گے۔ ڈبل شفٹ میں مارننگ شفٹ کو 12:30 بجے چھٹی ہوا کرے گی۔ سیکنڈ شفٹ میں اسکول دوپہر 1 بجے سے 5:30 بجے تک لگا کریں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اسکولوں کے نئے اوقات کار کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دوسری جانب نئے تعلیمی سال میں موسم گرما کی چھٹیاں 2 ماہ کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ موسم سرما کی چھٹیاں جنوری میں شیڈول ہو سکتے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش سے شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ اوپن مارکیٹ میں کم آمدنی والا طبقہ حکومتی ریلیف کا منتظر۔ 5 کلو آٹے کا تھیلا 900 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ چینی کی قیمت 160 روپے کلو تک دیکھی جا رہی ہے۔ ادھر چاول گھی آئل کی قیمت 590 سے 610 روپے کلو ہو گئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کے بعد کم آمدنی اور دہاڑی دار طبقے کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں 5 کلو آٹے کا تھیلا 900 روپے تک فروخت ہونے لگا، جو عام صارفین کی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ چینی کی قیمت بھی بڑھ کر 160 روپے فی کلو گرام تک جا پہنچی ہے۔ درجہ اول گھی اور کوکنگ آئل بھی 590 سے 610 روپے فی کلو گرام کے درمیان فروخت کیا جا رہا ہے۔ چاول کی قیمتیں بھی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ معیاری چاول 420 سے 620 روپے فی کلو گرام کی بلند ترین سطح پر ہے، جس کے باعث کم آمدنی والے طبقے کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری سبسڈی ختم ہونے سے انہیں روزمرہ کے بنیادی راشن کی خریداری میں شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں اشیاء فروخت کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ دوسری جانب سونے کی قیمتوں کو بھی تڑکا لگ گیا۔ 1 تولہ سونا 8,300 روپے مہنگا ہو گیا، جبکہ خالص 24 کیرات تولہ سونا 5,25,000 روپے تک جا پہنچا ہے۔ جبکہ 22 کیرات تولہ سونا 4,60,625 روپے کا فروخت۔ 21 کیرات تولہ سونے کی قیمت 4,39,687 روپے ہو گئی۔ صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمتوں میں ایک بار پھر نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ فی تولہ سونا 8,300 روپے مہنگا ہو گیا۔ خالص 24 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 8,300 روپے بڑھ کر 5,02,500 روپے تک جا پہنچی ہے۔ 22 کیرات فی تولہ سونا 4,60,625 روپے، جبکہ 21 کیرات فی تولہ سونا 4,39,687 روپے کا ہو گیا ہے۔ جیولرز کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور روپے کی قدر میں کمی مقامی مارکیٹ میں اضافے کی بڑی وجوہات ہیں۔ جیولرز کا کہنا ہے کہ اگر عالمی سطح پر قیمتوں میں استحکام نہ آیا تو مقامی سطح پر سونے کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں، جس سے عام خریدار کی پہنچ مزید محدود ہو جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سولر بجلی بنانے والے صارفین کے لیے نئی مصیبت۔ اضافی پینل سے بننے والی بجلی پر ریلیف مکمل ختم۔ بلنگ طریقہ کار میں ترمیم، معاہدے سے زائد بجلی بنانے پر کنیکشن پر MDI چیک نافذ۔ اضافی بجلی سسٹم پر شامل ہوگی، ریلیف نہیں ملے گا۔ بجلی کمپنیز میں اضافی بجلی کو 0 یونٹس کے طور پر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ سولر بجلی بنانے والے صارفین کے لیے نئی مصیبت تیار۔ معاہدے کے برعکس سولر سسٹم سے بجلی بنانے والے صارفین کے لیے بلنگ طریقہ کار میں ترمیم کر دی گئی۔ خلاف ورزی پر صارفین کے کنیکشن پر ایکسپورٹ MDI چیک نافذ العمل کر دیا گیا۔ چیک کا نفاذ ہونے سے اضافی پینل سے بننے والی بجلی پر ریلیف مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے۔ اضافی بجلی سسٹم پر شامل ہو جائے گی، تاہم نیٹ میٹرنگ پالیسی پر ریلیف نہیں ہوگا۔ ایکسپورٹ MDI ریڈنگ کی بنیاد پر اضافی جنریشن پر ریلیف بند کر دیا گیا۔ منظور شدہ جنریشن لائسنس سے اضافی پینلز لگانے پر ایکسپورٹ یونٹس پر ریلیف ختم کیا گیا ہے۔ بجلی کی تقسیم کا کمپنیز میں اضافی بجلی کو 0 یونٹس کے طور پر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ سستے گھروں کا خواب تاخیر کا شکار۔ پنجاب افورڈیبل ہاؤسنگ فائنانس پروجیکٹ کو شدید جھٹکا۔ اہداف پورے نہ ہونے پر منصوبے کا قرض رک گیا۔ اپنی شرط اپنا گھر اسکیم کو 25 ارب مالیت کا قرض تاحال نہ مل سکا۔ فلیگ شپ منصوبے کی کارکردگی سوالیہ نشان بن گئی۔ سستے گھروں کا خواب تاخیر کا شکار ہونے لگا۔ پنجاب افورڈیبل ہاؤسنگ فائنانس پروجیکٹ کو شدید دھچکا۔ اہداف پورے نہ ہونے کے باعث منصوبے کی فنڈنگ رک گئی۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے لیے 25 ارب کا قرض تاحال جاری نہ ہو سکا۔ دستاویزات کے مطابق اہداف کی عدم تکمیل پر ورلڈ بینک کی جانب سے $90 بلین کی قسط بھی روک دی گئی ہے، جبکہ 2024 میں
DLR सिस्टम के तहत $44 मिलियन और जमा माली साल के मजीद $52 मिलियन भी वाजिबुल अदा हैं। मंसूबे की सुस्त रवी की वजूहात में जमीन की अदम दस्तयाबी, माहौलियाती मंजूरियों में ताखीर और इदारा जाती कमजोरियाँ शामिल हैं। खसूसन खाटा की महदूद सलाहियत को बड़ी रुकावट करार दिया गया है। हुकूमती फ्लैगशिप मंसूबे की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे हैं, जिससे आम शहरियों के लिए सस्ते घरों का ख्वाब मजीद ताखीर का शिकार हो गया है। बात करेंगे मौसम की। शहर में ठंडी हवाओं और बादलों ने मौसम को खुशगवार बना दिया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा चंद घंटों के दौरान मौसम जुज़वी अबरआलूद रहने का इम्कान है। मौसम के हवाले से मजीद बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। देखिए, शहर लाहौर का मौसम जो है वो खुशगवार है और ठंडी हवाओं के साथ शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है। जबकि आज सुबह जो है वो सूरज का राज देखने में नज़र आया, लेकिन उसके बावजूद रात जो है वो थोड़ी ठंडी जो है वो महसूस हो रही है। जबकि दर्जा हरारत जो है वो कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की तो पेशगोई नहीं की गई है, लेकिन ताहाल जो है वो बादलों का राज देखने में नज़र आ रहा है इस वक्त जो है वो लाहौर के अंदर। और इस वजह से जो ठंडी हवाएं हैं उससे मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार देखने में नज़र आ रहा है। और शहरी इससे बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, क्योंकि नॉर्मली तौर पर अप्रैल के महीना जब शुरू होता है या मार्च के मिड तक जो है वो गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है, लेकिन आप भी जो है वो अप्रैल शुरू हो चुका है, उसके बावजूद रातें जो है वो ठंडी महसूस हो रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही। और ठंडी हवाओं के साथ जो बादलों का बसेरा है इस टाइम, और इसकी वजह से शहरी जो है वो ना सिर्फ पुरसुकून है बल्कि इस चीज़ का भी इजहार कर रहे हैं कि अप्रैल के महीने में भी जो ठंडी रातें हैं वो भी एक गिफ्ट है। और इसकी वजह से ना सिर्फ लाहौर की जो हैं वो ठंडी हवाओं से शहरी महसूस हो रहे हैं, बल्कि भरपूर अंदाज में जो है इन ठंडी रातों को जो है वो तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। आलमी तवानाई बहरान, हुकूमत का कफ़ायशारी की तरवीज बारे फैसला। फील्ड अफसरान के लिए फ़िलहाल कोई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। वासा ने 4 वाटर स्टोरेज टैंक की लागत में इजाफा कर दिया। मजमूई लागत 1 अरब से 1.5 अरब तक पहुंच गई। पंजाब हुकूमत की माहौल दोस्त ई टैक्सी स्कीम 3.5 लाख में से सिर्फ 1100 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट है। आलमी तवानाई बहरान, पंजाब हुकूमत ने कफ़ायतशारी की तरवीज बारे फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत फील्ड अफसरान के लिए फ़िलहाल कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेगी। मुख्तलिफ बैंकों फील्ड अफसरान के लिए 100 गाड़ियों की खरीदारी को रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक नई गाड़ियों की खरीदारी का ऑर्डर जारी नहीं हुआ, ना अदायगी की गई। 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी रोक दी गई। फिलहाल पुरानी गाड़ियां ही इस्तेमाल की जाएंगी। वासा ने अपने फंड से 4 वाटर सीवरेज टैंक मंसूबे की लागत में इजाफा कर दिया। चारों टैंक्स की मजमूई लागत 1 अरब से 1.5 अरब तक पहुंच गई। वासा बोर्ड इजलास में लागत में खतीर इजाफे का एजेंडा मंजूर कराएगा। वासा लेक रोड, दयाल सिंह कॉलेज, गार्डन टाउन और यूईटी में वाटर टैंक्स बनाएगा। वासा को यूईटी में वाटर टैंक बनाने का एनओसी नहीं मिला। वासा ने यूईटी वाटर टैंक का मंसूबा रीडिजाइन कर दिया। पंजाब हुकूमत की माहौल दोस्त ई टैक्सी स्कीम में अहम पेशरफ हो गई। स्कीम में मजमूई तौर पर 3,50,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अप्लाई किया। पुरानदाजी के बाद स्कीम के लिए 1100 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। ई टैक्सी स्कीम के 380 उम्मीदवारों ने डाउन पेमेंट जमा करवा दी। लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात पर पंजाब हुकूमत ने क्राइम सीन कवानीन 2026 नाफिज कर दिए हैं, जिनका मकसद जराइम की तफ्तीश को जदीद और मुअस्सर बनाना है। जराइम की तफ्तीश को जदीद और मुअस्सर बनाया जाएगा। कातिल, डकैती, ज़्यादती और दहशतगर्दी जैसे संगीन मुकदमात में साइंसी और फोरेंसिक शवाहिद को लाजमी करार दिया गया है। शवाहिद इकट्ठा करने, लेबलिंग, पैकिंग और सीलिंग का बाकायदा तरीक़ेकार भी मुकर्रर कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब हुकूमत ने क्राइम सीन कवानीन 2026 नाफिज कर दिए। क्राइम सीन यूनिट्स का दायराकार वाज़ेह करते हुए जिले सतह पर निज़ाम को मजबूत बनाने की हिदायत की गई है। चेन ऑफ कस्टडी के सख्त असूल नाफिज करके शवाहिद की कानूनी हैसियत को यकीनी बनाया गया है। हुकाम के मुताबिक शवाहिद की महफूज तरसील और रिकॉर्ड की हिफाजत के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं, जिनसे न सिर्फ तफ्तीशी मयार बेहतर होगा बल्कि अदालतों में शवाहिद की कबूलियत मजबूत होने के साथ इंसाफ की फराहमी भी तेज हो सकेगी। मुतअद्दिद सरकारी स्कूलों के साथ हाथ हो गया। तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स वापस मांग लिए गए। इजाफी क्लास रूम से बाउंड्री वॉल, टॉयलेट स्कीमों के चेक वापस न होने पर कार्रवाई का इंदिया।
मुतअद्दिद स्कूलों के सरबराहान पेश न हुए, मुतल्लिका हेड्स 2 अप्रैल को तलब। शहर के मुतादिद सरकारी स्कूलों के साथ हाथ हो गया। सरकारी स्कूलों से लाखों रुपए के तरक्याती स्कीमों के लिए जारी फंड्स वापस मांग लिए गए। इजाफी क्लासरूम्स, बाउंड्री वॉल और टॉयलेट स्कीमों के लिए फंड्स जारी किए गए थे। एजुकेशन अथॉरिटी ने इजाफी क्लासरूम्स, बाउंड्री वॉल और टॉयलेट स्कीमों के चेक्स वापस न होने पर कार्रवाई का इंदिया दे दिया। मुतादिद स्कूल्स के सरबराहान बार बार हिदायत के बावजूद दफ्तर पेश न हुए। मुतल्लिका हेड्स को 2 अप्रैल को तलब कर लिया गया। स्कूल हेड्स को चेकबुक, स्टाम्प और लेटर हेड साथ लाने की हिदायत कर दी। अदम हासिल पर मुतल्लिका हेड और डीओ के खिलाफ जिम्मेदारी मुकर्रर की जाएगी। डीईए लाहौर ने मामले को हसास करार देकर फौरी ताउन की अपील कर दी। तरक्याती फंड्स के चेक्स फौरी वापस न करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। कई स्कूलों को 50% फंड्स जारी हुआ मगर प्रोग्रेस रिपोर्ट ताहाल जमा न हो सकी। हल्का बीपी 153 में अलामा इकबाल रोड से लाहौर रोड तक जारी तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार हैं। 1.5 साल कबल सीवरेज पाइपलाइन के लिए सड़क तोड़ी गई मगर ताहाल मुरम्मत ना हो सकी। गहरे गड्ढों के बायस सड़क का एक हिस्सा बंद होने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अलामा इकबाल रोड ता लाहौर रोड तरक्याती काम इल्तवा का शिकार हैं। सड़क पर भी जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है जबकि कारोबारी सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। अहले इलाका का कहना है कि 1.5 साल गुजर जाने के बावजूद काम मुकम्मल ना होना लम्हाए फिक्रिया है। जब का काम इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इन्होंने कुछ मंथ के लिए काम किया, उसके बाद ये काम को अधूरा छोड़ के चले गए हैं। हुकूमत को हमारी अपील है कि इधर आएं, इधर देखें। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर तरक्याती काम मुकम्मल किए जाएं। काम स्टार्ट तो हुआ है लेकिन काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। मतलब ये मेन रोड का काम है, इसको तो इतनी प्रायोरिटी बेस पे होना चाहिए था ताकि इर्द गिर्द के लोगों को और कारोबार लोगों के जो उनसे इफेक्ट ना हो। हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द अज जल्द और फिलफोर तेज बुनियादों पे इसको मसले को हल किया जाए। इलाके में सीवरेज का पानी ताहाल जमा है जबकि गंदगी के ढेर भी मौजूद हैं जिसके बायस रिहाइशों में बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन अली अदनान के साथ अरबाज खान, सिटी 42। फ्यूल बहरान बढ़ गया, तमाम एयरलाइंस बैरून मुल्क से ज्यादा फ्यूल लेकर आए। हिदायत पर 15 अप्रैल तक सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की एयरलाइंस को नई हिदायत। इधर लाहौर एयरपोर्ट पर 4 परवासें मनसूख। कुवैत एयर का लाहौर से फ़ज़ाए सफ़र दमाम तक महदूद करने का फैसला। फ्यूल बहरान बढ़ गया, तमाम एयरलाइंस बैरून मुल्क से ज्यादा फ्यूल लेकर आएं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हिदायत पर 15 अप्रैल तक सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि जेट एवन फ्यूल सप्लाई चेन में खलल से तमाम एयरलाइंस एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर फ्यूल की अपलिफ्ट को कम से कम किया जाए। मशरिक वस्ता की सूरत हाल के बायस फ्लाइट ऑपरेशन अप्रैल के पहले रोज भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। बैनुल अक़वामी 5 एयरपोर्ट से 2 तरफा 54 परवासें मनसूख हुई। PIA, एयर ब्लू, एयर अरेबिया, ईरान एयर, कतर समेत दीगर एयरलाइंस की फ्लाइट्स शामिल हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर मशरिक वस्ता की परवाजों के ऑपरेशन में 4 परवासें मनसूख हुई। कराची एयरपोर्ट से अबूधाबी, जद्दा, शारजा, मदीना, दुबई की 18 परवासें उड़ान ना भर सकी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 2 तरफा 20 परवासें मनसूख हुई। मनसूख परवाजों में रियाद, शारजा, जद्दा, अबूधाबी, दुबई शामिल हैं। पेशावर एयरपोर्ट पर दोहा, शारजा, दुबई, अबूधाबी की 10, मुल्तान एयरपोर्ट से दोहा की 2 तरफा सिर्फ 2 परवासें मनसूख हुई। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान से 32 दिन के दौरान मनसूख परवाजों की तादाद 2528 हो गई। गुलबर्ग गालिब मार्केट गलियों में बिजली की लटकती तारें हादसात को दावत देने लगी। घरों की दीवारों के साथ बिजली की लटकती तारें किसी बड़े साने के मुंतज़िर। बिजली की तारें घर के साथ मौजूद होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात। बिजली की बेहंगम तारों के बाद हादसे का खतरा रहता है। इलाका मकीनों की जानिब से ये शिकायत सामने आई है। मजीद बात करेंगे आदियाना से। जी आदिया। शहर के कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें तारों के पीछे जाल जो हैं वो इलाका मकीनों के लिए वबाले जाम बनते चले जा रहे हैं। गुलबर्ग गालिब मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां के इलाकों की जो गलियां हैं वहां पर बिजली के नंगे तार इलाका मकीनों के लिए मुश्किलात का बायस बन रहे हैं। ज़रा मकीनों से जान लेते हैं कि किस चीज़ का खौफ, किस चीज़ का खदशा रहता है। अच्छा मुझे बताइएगा, मैं देख रही हूँ घरों की दीवारों के साथ वैसे भी गली के अंदर तार बहुत नीचे हैं, कितना मुश्किलात होती हैं इससे मकीनों को? हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बारिश होती है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट अक्सर हो जाता है। ये तारें हम देख रही हैं नीचे लमकी हुई हैं तो यहाँ से डर ही रहता है। ये ऐसे हाथ भी करें तो हाथ ऐसे टच भी हो सकता है, तो ट्रक भी नहीं आ सकते इधर। ट्रक अक्सर आते हैं तो बिजली की तार टूट जाती है। ये हुआ है, काफ़ी बार हुआ है, बहुत बार ही हुआ है। अच्छा आप क्या कहेंगे कितना मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे अक्सर गलियों में खेलते हैं ना, उसमें भी डर रहता है कि कोई हाथ। जी छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं तो अक्सर इस चीज़ का हमें रहता है कि कहीं वो बेचारे करंट ना लग जाए उन्हें। तो
ठीक हो गया। देखिए इलाका मकीन इस हवाले से ये मौक़िफ़ रखते हैं कि डर रहता है कहीं हादसा ना हो जाए और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए जो है वो मुश्किलात हो सकती हैं। तो यही है कि जो वाबड़ा हुकाम हैं वो इस हवाले से ख़ास तवज्जो दें ताकि इलाके में जो तारें बिछी हुई होती हैं उनका एक मुकम्मल जो है प्रॉपर हल हो सके। अमूमन देखने में ये आता है कि इलाका मकीन अपनी मदद के तहत तारों को ऊपर बुलंद करने के लिए रस्सियों से बांध देते हैं। तो ये कोई प्रॉपर हल नहीं है, प्रॉपर हल का भी मुतालबा किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया दियानाज़ आगाह करने के लिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा, जहां रावटू और सूबाई वज़ीर लेबर इंसानी वसाइल मंशौला भट्ट ने मुलाकातें की। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा ज़ाती मफाद से बालातर होकर मुल्की मफाद को तरजीह दी है। पीपल्स पार्टी मुल्क की तरक्की के लिए मौजूदा हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन करेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मुल्क के वसीतर मफाद के लिए है। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। गवर्नर सलीम हैदर ने कहा कि बिलावल भुट्टो नौजवानों के लीडर हैं। उनका कहना था कि किसी भी सियासी जमात के पास सिवाय पीपल्स पार्टी के नौजवान क़यादत नहीं। अब यहाँ पर आपको बताएं, इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। तरबियत हासिल करने वालों में 7 ख़वातीन भी शामिल हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर सेहत बलोचिस्तान बख्त मोहम्मद काकड़ थे। कहते हैं कि असली दुश्मन भारत की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। बलोचिस्तान की बेटियां भी इंसानी खिदमत का जज्बा लिए पहली मर्तबा अमली मैदान में आ गयीं। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में 7 ख़वातीन समेत 87 कैडेट्स ने रेस्क्यू की तरबियत मुकम्मल की। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान ने बलोचिस्तान पास आउट होने वाले रेस्क्यूअर से हल्फ लिया। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर अहद करता हूँ कि बतौर इमरजेंसी रेस्क्यूअर मैं खुलूस नीयत से पूरी लगन और दयानतदारी के साथ इस इमरजेंसी सर्विस में खिदमत सर अंजाम दूंगा। डॉक्टर रिजवान ने बलूचिस्तान के रेस्क्यूअर को तरबियत मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। रेस्क्यूअर्स को 3 माह पर मुश्तमिल तरबियती कोर्स करवाया गया। फायर फाइटिंग, सैलाबी सूरत हाल से निमटने, हंगामी सूरत हाल के दौरान मुश्किल में फंसे अफराद को निकालने और मेडिकल की सहूलत फराहम करने के गुर सिखाए गए। वजीर सेहत बलूचिस्तान बख्त मोहम्मद काकड़ का कहना था कि मौजूदा हालात में बेटियों को अमली जिम्मेदारी के मैदान में कदम रखता देखकर सर फख्र से बुलंद हो गया। जब भी हमारे रेस्क्यूअर पास आउट हुए उन्होंने हमेशा तारीफ की है कि हमारे साथ इस एकेडमी में जो सलूक रखा गया वो यकीनन काबिल सताइश है, काबिल दाद है। और आज इस एकेडमी में चारों सूबों के रेस्क्यूअर्स को देख के ये बहुत बड़ी मिसाल है नेशनल इंटीग्रेशन की। वजीर सेहत पंजाब सलमान रफीक का कहना था कि सूबाई तासुब फैलाने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। आज बलोचिस्तान को, पंजाब को, सिंध को, गिलगित को, कश्मीर को, KPK को एक इत्तेहाद तंजीम का मुजाहरा करना है। हम सब एक हैं, कोई सूबा नहीं, पहले पाकिस्तान आखिर पाकिस्तान। वजीर सेहत बलूचिस्तान ने तरबियत मुकम्मल करने वाली कैडेट्स के लिए 1-1 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया। कैमरामैन जमील के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। ऑटिज्म से आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद इस एसाबी बीमारी के बारे में शऊर पैदा करना, मुतासर अफराद के हकूक, तालीम और माशरे में उनकी शमूलियत को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिमागी नशोनुमा में रुकावट पैदा करने वाले मर्ज ऑटिज्म से आगाही का दिन मनाया जाता है। ऑटिज्म बच्चों में 18 माह से 3 साल की उम्र में जाहिर होता है। ऑटिज्म इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर करिकुलम डॉक्टर फैसल चौधरी का कहना है कि ये मर्ज बच्चे की बोलचाल, समाजी ताल्लुकात, जहानत और अपनी मदद आप जैसे अवामिल पर असरअंदाज होता है। जितनी भी अल्लाह ताला ने सेंसेस दी हैं और सीखने की कोशिश है उसमें उसको मुश्किलात पेश आती हैं, चीज़ों को समझने में मुश्किलात पेश आती हैं। छोटे छोटे जुमले, छोटी छोटी बातें जो कि किसी के लिए भी समझना मुश्किल नहीं है, उसको समझकर रिस्पॉन्स देना, रिएक्ट करना, यहाँ बच्चों को दुश्वारी आ रही होती है तो हम कहते हैं कि यहाँ ऑटिज्म का साइन है। बायोमेडिकल कंसल्टेंट डॉक्टर फायजा खुरम का कहना है कि ऑटिज्म बीमारी में मुब्तला बच्चा खामोश रहना पसंद करता है और वो दूसरों से बातें करने में अदम दिलचस्पी का इजहार करता है। वालिदैन मुतासिरा बच्चे पर खुसूसी तवज्जो और उसका स्क्रीन टाइम कम करवा कर उसे समाजी दायरे में लाने के लिए अपना किरदार निभा सकते हैं। रो रहा है तो आप उसको स्क्रीन दिखा रहे हैं। अगर आपने बाहर रेस्टोरेंट में जाना है या किसी के घर जाना है
तो आप उसको स्क्रीन पे बिठा देते हैं ताकि वो चुप करके सिर्फ स्क्रीन देखता रहे। तो जब वो एक ही चीज़ देखता रहेगा तो उसको उसी का ही हैबिट हो जाएगी, वो उसी से ही सीखेगा और उसी से ही इंटरेक्ट करेगा। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दें, मीन्स पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फुप्पो, चाचू, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, उसके साथ आई कांटेक्ट लेके बात करें, उसको छोटी छोटी कमांड्स दें, बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करें। वर्ल्ड ऑटिज्म डे की मुनासिबत से मुतासिरा तालिब इल्म ने गीत सुनाया जिससे हाजिरीन महजूज हुए। वास्ते कहा है दुनिया मेरी चवा है। मरीज बच्चे हमारे खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। हमारी तवज्जो उन्हें मुफीद शहरी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पाकिस्तान में 3.5 लाख बच्चे ऑटिज्म का शिकार हैं और इनकी तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। तिबी माहिरीन का कहना है कि अद्वियात के साथ साथ आर्टिस्ट बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव और स्पीच थेरेपी उनके लिए सूदमंद साबित हो सकती है। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42, लाहौर। ग्रीन ब्लॉक पार्क में ग्रीन क्लीन लेबर यूनियन के ज़ेर एहतमाम सुथरा पंजाब प्रोग्राम से वाबस्ता मसीही मुलाजमीन के एजाज़ में अफ्तारी का अहतमाम किया गया। तकरीब में मुस्लिम और मसीह मुलाजमीन ने शिरकत करके मजहबी रवादारी और भाईचारे का अमली मुजाहरा पेश किया। सेंट्री वर्कर्स के आलमी दिन की मुनासबत से ग्रीन क्लीन लेबर यूनियन की जानिब से सुथरा पंजाब मसीही मुलाजमीन के एजाज में अफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद सफाई सुथराई के शोबे से वाबस्ता मेहनत कशों की खिदमात को खराज तहसीन पेश करना और उनके साथ इजहार यकजहती करना था। हम मुसलमान भाइयों ने अपने 30 रोज़े रखे और आज हम अपने मसीही बहन भाइयों के एजाज में उनकी अफ्तारी में और शिरकत की है, उनकी अफ्तारी करवाई है। ग्रीन क्लीन लेबर यूनियन सुथरा पंजाब ने ये अहतमाम किया है और ये हमने मुस्लिम और मसीही भाइयों के एजाज़ में उनका मुश्तरका ये अफ्तारी करवाई है ताकि यकजहती मज़ाहिब में यकजहती रहे। आज सेंट्री वर्कर डे है, आलमी सतह पर सेंट्री वर्कर्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है। हमने भी आज ये अफ्तारी का एहतमाम करके ये पैगाम दिया है कि हम एक हैं, एक ख़ानदान है, एक मजबूत घराना है हमारा, वो चाहे मुस्लिम हो चाहे मसीही हो, हम एक ख़ानदान की इमारत काम करते हैं। और यही वजह है कि आज मगरब जो है वो हमारी इस कारकर्दगी का मोतरफ है और वो हमारी इस कारकर्दगी को सराह है। आज हमने अपने सैनिटेशन वर्कर जो हैं भाई हैं, इनके सबके लिए हमने अफ्तारी का अरेंज करवाया और ये हमारी खुशियों में शामिल होते हैं, ईद की खुशियों में शामिल होते हैं। इस तरह हम ईस्टर की और इनकी तमाम खुशियों में शामिल होते हैं। सुथरा पंजाब मुलाजमीन ने कहा कि अदारे में मुस्लिम मसीही भाईचारा कायम है, जिसके तहत एक दूसरे के दुख सुख में बराबर के शरीक होते हैं। मसीही मुलाजमीन ने अफ्तारी के एहतमाम पर साथी मुलाजमीन और ग्रीन क्लीन लेबर यूनियन के साथ इजहार तशक्कुर किया। हमें बहुत खुशी है, सर जवान ने हमारे रोजे खुलवाए हैं, हर तरह के साथ हमारे साथ खड़े होते हैं और मुस्लिम भाई हमारा साथ पूरा देते हैं, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मजहबी फरीज़ा भी अंजाम दिया है और कौमी के साथ साथ मजहबी यकजहती को भी जो प्रमोट करने की कोशिश की है। बेसिकली क्रिश्चियनिटी जो है वो हमारे लिए उतनी ही अहम है जितनी हमारे लिए इस्लाम अहम है। सुथरा पंजाब के मुस्लिम मसीही मुलाजमीन मुआशरे में मोहब्बत, रवादारी और इत्तेहाद को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा पाक फार्मा एंड हेल्थ केयर एक्सपो का कामयाबी इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर से वाबस्ता मारूफ कंपनीज ने भरपूर शिरकत की। एक्सपो में 100 से ज़्यादा कंपनियों ने अपने स्टॉल्स कायम किए, जहां जदीद अद्वियात, तिबी आलात और सेहत से मुतालिक नई टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाया गया। नुमाइश के दौरान शहरियों की बड़ी तादाद ने एक्सपो का रुख किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा करते हुए सेहत के शोबे में होने वाली जदीद पेशरफ्त के बारे में आगाही हासिल की। माहिरीन सेहत और कंपनी नुमाइंदों की जानिब से शुरा को बीमारियों से बचाव, जदीद इलाज और तिबी सहूलियात के हवाले से तफसीली मालूमात फराहम की गई। इवेंट का मकसद न सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना था बल्कि अवाम में सेहत से मुतालिक शऊर उजागर करना भी था। मुंतज़मीन के मुताबिक इस तरह के इवेंट मुल्की मईशत और हेल्थ सेक्टर की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। सकाफती मरकज़ अलहमरा आर्ट्स कौंसिल को बैनुल अक़वामी मयार पर इस्तवार करने के लिए ताज़ीन और आइश के तीसरे मरहले का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से इस अहम मनसूबे के लिए 2 अरब रुपये के खतीर फंड फराहम किए गए हैं, जिनका मकसद अलहमरा को जदीद सहूलियात से आरासा करते हुए आलमी सतह की सकाफती मरकज़ में तब्दील करना है। तीसरे मरहले में आर्ट गैलरीज के साथ हॉल 3 और अदबी बैठक के अपग्रेडेशन पर काम शुरू कर दिया गया है, जहाँ जदीद तर्ज की सहूलियत फराहम की जाएंगी।
تاکہ فنکاروں، ادیبوں اور ثقافت سے وابستہ افراد کو بہترین ماحول میسر آ سکے۔ محکمہ C&W اس منصوبے پر عمل درآمد کر رہا ہے، جبکہ ابتدائی مراحل میں سیوریج سسٹم کی بہتری مکمل کی جا چکی ہے۔ جاری مرحلے میں ہال 4، ہال 3 آرٹ گیلریز اور ادبی بیٹھک کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ الیکٹرک موبلٹی کمپنی جن پنگ اور پشاور زلمی کے درمیان MOU طے پا گیا۔ پشاور زلمی نے PSL 11 کے لیے جن پنگ کو اپنا آفیشیل الیکٹرک موبلٹی پارٹنر مقرر کرنے کا اعلان کر دیا۔ تقریب میں پشاور زلمی کے سٹار کھلاڑی بھی شریک ہوئے۔ میں الیکٹرک موبلٹی کمپنی جن پینگ اور پشاور زلمی کے درمیان MOU پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ پشاور زلمی نے HBL PSL 11 کے لیے جن پینگ کو اپنا آفیشیل الیکٹرک موبلٹی پارٹنر مقرر کر دیا۔ چیف آپریٹنگ آفیسر پشاور زلمی میاں عباس اور COO جن پینگ خرم شہزاد نے معاہدے پر دستخط کیے۔ تقریب میں پشاور زلمی کے کھلاڑیوں عبدالصمد، کوشل مینڈس، عامر جمال، برائن بینیٹ، مائیکل بریسویل، ایرن ہارڈی، علی رضا، سفیان مقیم، فرحان یوسف بھی شریک ہوئے، جنہیں قرعہ اندازی کے ذریعے 2 الیکٹرک بائکس دی گئیں۔ اس موقع پر جن پینگ کی جدید ترین الیکٹرک بائکس کی رونمائی بھی ہوئی۔ میاں عباس کا کہنا تھا کہ یہ شراکت داری پائیداری، جدت اور ترقی پر مبنی ایک دور اندیش ویژن کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہے اس ٹائم پہ پاکستان جو کہ انرجی کی کرائسس سے گزر رہا ہے، یہی وہ رائٹ ٹائم ہے کہ جہاں پہ ہمارے لوگوں کے لیے یہ ایک پروڈکٹ اس طرح آ رہی ہے کہ جس پہ ان کو نہ انرجی کے کرائسس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی جو اکنامیکل ان کے خرچے وغیرہ جو ہے وہ بھی کور ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے ہمیشہ زلمی نے ہمیشہ وہی پارٹنرشپس کی ہے جس پہ ایک میسج جاتا ہے اور ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جس پہ پبلک اور عوام کو ایک فائدہ ملتا ہے۔ COO جن پینگ خرم شہزاد نے کہا کہ جن پینگ پاکستان بھر میں الیکٹرک موبلٹی کے استعمال کو تیز کرے گی۔ ان دونوں کمپنیوں نے مل کے کولیبریشن کی ہے کہ ہم دونوں برانڈ پارٹنرز بنیں گے اور جن پینگ کو ہم انشاءاللہ پاکستان میں لانچ کریں گے۔ اینڈ واٹ وی آر آفرنگ ان پاکستان کہ جن پینگ جو ہے وہ بہت ہی وائڈ رینج آف پروڈکٹس وہ آفر کر رہی ہے جو کہ ہمارے کسٹمر جو پاکستان میں ہیں ان کے لیے ہر طرح کے سولوشن پرووائڈ کر رہی ہے۔ 2004 میں قائم ہونے والی جن پینگ کمپنی گلوبل الیکٹرک موبلٹی میں توانائی کی بچت کے لیے گاڑیاں بنانے میں مہارت رکھتی ہے۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ ترکیہ فارغ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ترکش یونیورسٹی میں صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات، ترکیہ کے قونصل جنرل محمد ایمن شمشک شریک ہوئے۔ مختلف ترکیہ یونیورسٹیز کے نمائندگان نے اسٹالز لگائے، طلباء کی بڑی تعداد نے اسٹالز کا وزٹ کیا اور مواقع بارے آگاہی حاصل کی۔ جوہر ٹاؤن میں ترکیہ فارغ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ترکش یونیورسٹی فیئر 2026 کا انعقاد ہوا۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اور ترکیہ کے قونصل جنرل نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات ہمیشہ سے استوار رہے ہیں۔ ہم بھی اسکالرشپس دے رہے ہیں تاکہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس ترکیہ جا کر پڑھ سکیں۔ اگر آپ معرف اسکولز میں پڑھتے ہیں تو آپ کو ٹرکش یونیورسٹیز کی ٹیوشن فی نہیں دینی پڑتی بیکاز دے کنسیڈرڈ ایکول اسٹوڈنٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ امپلائبلٹی بہت اچھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو فیسیں آپ US، یورپ یا کینیڈا، آسٹریلیا دے رہے ہیں ان سے 1/4 ہے، اینڈ وی لوکنگ آن ایکسپینڈنگ دی پارٹنرشپ بائی گیٹنگ few campuses of Turkish universities here in Pakistan. صدر پاکستان ایجوکیشن کونسل میاں عمران مسعود، موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ سمیت دیگر نے بھی ترکیہ یونیورسٹی فیئر کو خوب سراہا۔ ان کے پروگرامز ریکگنائزڈ ہیں پوری دنیا میں، اور یہاں پر ایزی اتنی مہنگائی بھی نہیں ہے، رہائش کی بھی اور فی کے حوالے سے، اور اسکالرشپ بھی مل جاتے ہیں۔ تو پاکستانی بچوں کو پاکستان میں رہ کے اتنی بڑی اپرچونٹی آ گئی ہے، یہاں پہ بچے ایڈمیشنز لے سکتے ہیں۔ درجنوں یونیورسٹیوں کا یہاں پر آنا اور پھر ہمارے پاکستانی ینگسٹرز کو اسکالرشپ آفر کرنا، اس میں پاک ترک معارف کا پوری ٹیم کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اتنے لوگوں کا یہاں وزٹ کرنا یہ بڑا خوشائن ہے۔ اس موقع پر مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز بھی موجود تھے۔ ترکیہ یونیورسٹیز کے مختلف نمائندگان نے سٹالز لگائے، طلباء کی بڑی تعداد نے سٹالز کا دورہ کیا اور مواقعوں بارے آگاہی حاصل کی۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔